and Family Welfare. We welcome all the CHOs, medical officers from the various PHCs, CHCs who have joined us for this yet another webinar of this national webinar series. And the topic today happens to be the World Cancer Day as well, and the theme is United by Unique, and the topic for discussion today is also in line with the Murthy from the Cancer Institute, Chennai, as one of our esteemed speakers. So, before we start the webinar, I would like to request Dr. L. Swasti Charan sir, additional DDG and Director EMR, to for the welcome address for the audience. Over to you, sir. Thank you, Avinash, and good morning, good afternoon, ladies and gentlemen, whoever had joined us this fortnight webinar from the National NCD Cell of the Ministry of Health. We welcome you once again to yet another webinar, and today's webinar we are dedicating to cancer on the eve of the World Cancer Day. And as Dr. Avinash has rightly said, today's theme is united by unique. So we have unique features of cancer. That's why we need unique solutions for them together. Friends, before our expert, Dr. Arvind, takes you to this journey, we would like to highlight a little bit about of what we are doing in in the National Program for NCD. The Cancer Registry Program, the National Cancer Registry Program of India by ICMR tells you that we have 38.32 lakh cancer patients per year, which is combination of both old and new cases, and 15.3 lakh per year new cases, and out of these 8 lakh people die every year. So we have got various cancers, and we are concentrating for the moment for screening for oral cancer, breast, and cervical. And in the morning we have a hub in Lady Harding Medical College, which deals with oral potential malignant disorders. So we are trying to catch the cancer young, when it has not become even cancer. When it is an oral potential malignant disorder, we are trying to catch them young. So we're discussing in the morning why, while we are trying to cater to the needs of the cancer patient, which we should also be investing on the health promotion aspect, so that we lead healthy lives, and also in the primary and secondary prevention, because of the various factors, one of them being tobacco. We know that in India, as many as as many as 26.7 crore above the age of 15 years currently use tobacco in some form or the other. And out of these, 19.9 of them use smokeless tobacco in various forms, and 10 crore smokers are there in India. And what is also more alarming for me is, if the Global Youth Tobacco Survey indicates that we have about children as young as 7 years old in the states like Uttarakhand trying to pick up tobacco use. So these factors, along with many other factors, are going to lead cancer, and we need to understand them together. So the National Program for NCD have established about 7,180 NCD clinics at the district hospital, and so in some states, even in the sub-district hospital, and the CHC community health centers. We do have daycare centers to the extent of 372 of them, and we are planning to add more to saturate all the district hospital. You have heard the budget announcement already. We also do, as I said, the screening for the NCDs, and we have got about 1.7 lakh Ayushman Arogya Mandir. We roll out many IEC material, and we are doing today's theme, United by Unique, etc. And we also run about 19 state cancer institutes and 20 tertiary cancer care centers, and several INIs and new 22 AIMS and 2 National Center of Excellence taking care of cancer. We also have PMJ packages up to the limit of 5 lakh, trying to cater to the needs of the cancer, to all patients, including cancer. And Amrit pharmacies are trying to provide affordable cancer medicines, etc. And also the budget announcement is paving the way
for the future. So the final takeaways, friends, is self-promotion is the key. If you can lead healthy life, nothing like it. If you are not able to do it, if you have many friends who have gone beyond that, then prevention still is the better way of doing it. And OPMDs also provide certain opportunities, and for other cancers, when we do not have OPMD like situation where there is pre-cancer stage, we need to screen ourselves as early as possible so that we can take care of us. But cancer patient journey is not just one time surgery like appendectomy. When you have done appendectomy, on the third day or the fourth, you are actually playing football. But for cancer patients, it's a lifelong journey. My cancer colleagues tell us that once you have cancer, we try to give life for 3 months. You always call them back after 3 months, hoping that nothing goes wrong. And once we have successfully fought cancer, then many months that you have made you have lost during the fight for cancer, you need to come back. You need to have a cancer survivorship program in the society so that you are productive and able to support yourself and your family again. So this is a very complex situation. Nevertheless, we are all doing our bit, and we will continue to do it. And today, I'm happy that Dr. Arvind Krishnamurthy, who is the professor and head of Department of Surgical Oncology at the Cancer Institute, Chennai, one of the premier institutes, all institutes of the country. Hello. Hello. Yes, sir. I think. Sir, thank you, sir. Thank you for those guiding remarks. Now, I would like to request Dr. Arvind Krishnamurthy from the Cancer Institute, Chennai, who is the professor and head surgical oncology, to kindly take over. Over to you, sir. Yeah, good afternoon. I think at the outset, my regards to Dr. Swasti sir. I think we fondly remember your coming to the Cancer Institute a couple of months back and spending time with us. Also, thank Dr. Avdesh, Dr. Nivedita Pawar for the opportunity. It's a unique honor to sort of speak to the important stakeholders of cancer care and cancer control nationally. And I would take this opportunity to sort of once again express our gratitude from the Cancer Institute and from the cancer community. The mandate given to me was cancer awareness, prevention, and control. Dr. Swasti sir did mention the government initiatives, and very recently in the budget, we got to know that at least 36 life-saving cancer drugs also have got customs exemption, and this is really good news. So I think the government has been doing its bit, quite a lot. In fact, I'm not sure whether to call it bit, but I guess this is one of the most welcome and most recent initiatives from the government to promote early diagnosis and treatment of cancers. So I bring greetings from three wonderful institutions: the Madras Medical College, Chennai, where I did my master's; the Tata Memorial Center in Mumbai, where I graduated, did my super specialty in surgical oncology, and the Cancer Institute Adyar in Chennai, where I've been practicing for the past 20 years. You all know the World Cancer Day. It's been there since the year 2000, initiated by the UICC, mainly to raise awareness, also to educate people about the identification, prevention, and treatment of cancer. Every 3 years, they've got a theme. The theme for 2025 to 27, as was said, is United by Unique. This means that we are focusing now on patient-centric cancer care rather than disease-specific. And each patient, as you all know, has got a unique story, needs, perspectives. And it also means that we have to plan an effective management and treatment option for patients which are aligned to their choices and values. And that's what is the theme. All these years, it was about general and broad awareness, but here the patient is in the center stage, as always is, and we have to align our care, taking into consideration the choice and values of these patients. We all know that the cancer is
not just affecting the physical self, but also a little bit of the mental, psychosocial. A lot of patients have addiction due to lifestyle factors, tobacco, alcohol, so that needs to be addressed. A lot of people have fears, stigmas, and which I'm sure that you all are doing a great deal to address. Financial is a major issue, but thanks to the government initiatives, the Ayushman Bharat, we are able to sort of get some headway. A lot of the poorer patients are able to sort of able to get some sort of a relief with regards to cancer care, but out of pocket expenses is something that we must take. The other issues are regarding pain management and all those things that we need to sort of take in care. Dr. Swasti Charan sir has given an estimate of the numbers of cancers. It is expected to rise about 12% by the 5 years. I must say it's not an alarming increase, but nonetheless a definite increase which is there over the past 5 years. So we just need to sort of consolidate what we are doing. If you see the common cancers among men and women, and these are the list of cancers in the men, there is oral cavity and lung, and I'm glad to hear that you had a session on oral potentially malignant lesions, because oral cancers are not just a problem in men, but they also figure in the top 5 in women as well. Lung cancers, which was earlier not seen, it's there both in men and women. And of course, in women, it is breast and cervical cancers in that order. 25 years earlier, it was cervix first and breast later, but now it is the other way around. Modern westernization is causing more amount of breast cancers all over. Broadly, if you see the trends, and I think I'm thankful to the government, ICMR, for the data. Most of the data have been, especially in statistics, are being taken from ICMR. All the institutions contribute, including the Cancer Institute, having a hospital-based as well as a population-based cancer registry. Breast and lung cancers clearly on the rise, cervical and stomach cancers slight decline, and esophagus and brain cancers are stable. So it's not that every cancer is increasing. Certain cancers are increasing, like the breast and lung, so which means that you all have to sort of focus on some of these cancers. Cancers by design or by default seems to be decreasing. For example, the cervical cancers. And the last year in budget, we had the finance minister giving a push for, or rather earlier this year in the interim budget, madam had announced the Indian cervical cancer vaccine, and I'm going to see, and I'm sure that there is going to be a major push in the Indian cervical cancer vaccine in the months to come about. The reasons for the increase, and I was told that this is a diverse audience, and I was told to sort of speak in Hindi as well. So I will try to sort of modulate and try to speak in Hindi as well, if that's okay with a lot of you all, because that was what the mandate was given to you. To me, the reasons was that the increase in cancers क्यों बढ़ रहा है, तो दो मेन रीजंस के कारण बढ़ रहा है. एक तो नॉर्मल एजिंग है और दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ है के कारण है. और मेजर कंसर्न है लाइफस्टाइल. अगर आप देखते हैं तो 1900s में कैंसर जैसी नाम की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आगे आगे क्या चल रहा है कि ऑलमोस्ट 100 सालों में क्या हो रहा है कि लाइफस्टाइल बदल रहा है, और इस बदलते हुए लाइफस्टाइल के कारण कैंसर्स की जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं. और लेकिन बात यह है कि 50 से 60% की कैंसर्स को हम ऑलमोस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं इफ लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण. और जो मेजर फैक्टर्स है वो आप सबको पता है, तंबाकू के कारण, अल्कोहल के कारण, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सेसिव वेट और पुअर डाइट के कारण. इन 5-6 लाइफस्टाइल फैक्टर्स को अगर कंट्रोल करते हैं तो 50 से 60% कैंसर्स को हम प्रिवेंट कर पाएंगे. तो ये जनरल कैंसर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हैं. तंबाकू से दूर रहें, और हमारे इसमें मैं तंबाकू के बारे में और काफी 2 स्लाइड्स है, उसके बाद में हम विस्तार से बोलूंगा. दूसरी है अल्कोहल पॉलिसी. अब पहले था कि अल्कोहल हार्ट के लिए थोड़ा अच्छा है, रेड वाइन इज गुड फॉर द हार्ट, लेकिन अभी थोड़ा लेटेस्ट स्टडीज कह रहा है कि थोड़ा डिफरेंट है, वो उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करूंगा. प्लांट बेस्ड डाइट कह रहे हैं कि सब लोग, और थोड़ी चीज कहते हैं कि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट खाओगे तो कैंसर्स के कारण जो मॉर्टेलिटी होती है उसमें भी नंबर्स कम होते हैं. दूसरी और तीसरी चीज है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स के कारण होता है. तो इंपॉर्टेंट है कि वेट को अच्छी तरह से मेंटेन करना और फिजिकली एक्टिव रहना. चौथा और पांचवा चीज है वैक्सीनेशन. और 2 कैंसर्स के कारण मैं पहले भी कह चुका हूं, सर्वाइकल कैंसर्स के लिए एक इफेक्टिव वैक्सीन है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है. इनफैक्ट वो एचपी वैक्सीन काफी सारी और को भी प्रिवेंट करता है. लिवर कैंसर्स का एक मेन कारण होता है कि हेपेटाइटिस वायरस की वैक्सीन. ये तो
हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी आ गया है। सन रिलेटेड कैंसर्स जनरली ऑस्ट्रेलिया और बाकी सारे नेशंस में है जो इक्वेटर के पास है। हमारे इसमें सन रिलेटेड कैंसर्स नहीं, ज्यादा नहीं है, बट फिर भी हमारा एक एडवाइस होगा कि अल्ट्रावायलेट रेस को आप स्पेशली 10 बजे से 4 बजे के बीच में जो अल्ट्रावायलेट रेस ज्यादा होता है उसे अवॉइड करें। तंबाकू और कैंसर्स का तो हमारे आईसीएमआर का डेटा है कि 27% है रिलेटेड टोबैको रिलेटेड कैंसर्स, और स्मोकिंग के कारण तो 10 से 20 गुना ज्यादा होता है। और हमारे बदन में जो भी कैंसर्स हैं, ऑलमोस्ट 15 या 20 कैंसर्स होंगे जो तंबाकू के कारण रिलेटेड है। हमारे इंडियन यूनिकनेस देखते हैं कि 75% पेशेंट्स जो होते हैं उनका तंबाकू के साथ स्मोकलेस टोबैको यूज हो जाता है। स्मोकिंग और बीडी कंजम्पशन 10% और 9% है, लेकिन मेजर कंजम्पशन होता है वो तंबाकू के कारण होता है या स्मोकलेस टोबैको के कारण होता है। तो इसके लिए हमको काफी सारे यूनिक स्ट्रेटजीज डिवाइस करने पड़ेंगे इसको प्रिवेंट करने के लिए। और इंपॉर्टेंट बात यह है और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन यह है कि टोबैको जब सेसेशन होता है, जब हम इस टोबैको से बाहर आते हैं, पेशेंट्स या कोई और भी आते हैं, तो इससे साइंटिफिकली प्रूव होता है कि कैंसर्स का जो मॉर्टेलिटी होता है, जो ऑल कॉज मॉर्टेलिटी होता है, और जो कैंसर स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी होता है वो कम होता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिन पेशेंट्स ने तंबाकू की हैबिट को छोड़ा है उनकी मॉर्टेलिटी कम होता है। और तंबाकू के कारण काफी सारी टाइम में सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी होता है, और इसका भी कॉन्क्रीट एविडेंस है कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो क्लोज्ड एनवायरमेंट्स में रहते हैं, स्पेशली लेडीज को होता है और बच्चों में होता है, वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स है, वो इट इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो सेसेशन क्लिनिक्स काफी सारे हैं। तो मेरा एडवाइस है कि अगर कोई पेशेंट अपने आप में से तंबाकू से बाहर आना चाहता है तो उसका क्विट परसेंटेज ऑफ सक्सेस होगा 2 से 5%। लेकिन अगर डेडिकेटेड टोबैको सेसेशन क्लिनिक्स में होता है, डेफिनेटली इसका क्विट रेट ऑलमोस्ट 30 to 40% तक होता है, जहां पर काउंसलिंग, सपोर्ट ग्रुप्स, बिहेवियरल थेरेपी और कभी रेयर इंस्टेंसेस में निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी और काफी सारी मेडिसिन देते हैं। दूसरा है अल्कोहल। पहले कहते थे कि मॉडरेट अल्कोहल इज गुड फॉर हार्ट, लेकिन ये सब मिथ है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन और कैंसर फेडरेशन के अनेक बॉडीज ने कह चुका है तो कि जीरो अल्कोहल पॉलिसी फॉर कैंसर्स है। तो ये अभी नहीं है, ये ऑलमोस्ट 5 साल से कहते आ रहे हैं। तो बिल्कुल विथ रिगार्ड्स टू कैंसर्स तो ये 100% नो है। इन्फेक्शंस, काफी सारे इन्फेक्शंस के साथ के कारण भी कैंसर्स होते हैं। ऑलमोस्ट 13% इन्फेक्शंस के कारण होता है। हमने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में बात की थी, उसके लिए हमारे पास एक वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस के बारे में बात की थी, उसके कारण भी हमारे पास, उसके के लिए भी हमारे पास एक वैक्सीन है। बाकी के सारे बैक्टीरिया और वायरस है जो कैंसर्स का कॉज करते हैं, उसके लिए इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे पास है। तो इसके लिए ऑफ कोर्स सेफर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, नीडल्स डिस्पोजेबल, और आजकल तो सब लोग डिस्पोजेबल नीडल्स ही यूज करते हैं। और वैक्सीनेशन, जो मैंने पहले भी कह चुका हूं कि हेपेटाइटिस और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन का काफी पुश आजकल हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी और ओबेसिटी ये एक ऑलमोस्ट हिडन एपिडेमिक सॉर्ट्स है, जो कि सिर्फ 5% कैंसर कॉज करते हैं, और खासकर लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर, और बोथ लेडीज और जेंट्स में कोलन कैंसर, जो बवल की इलाज बवल कैंसर है उसमें होता है। तो मेजर एम्फोसिस होता है कि बॉडी वेट, बीएमआई जो कहते हैं, वो मेंटेन करने को 19 से 25, उसके कारण भी प्रोटेक्शन मिलता है। काफी सारे एक्सरसाइजेस फिजिकल एक्टिविटी को एनकरेज करने के लिए कहते हैं, काफी एक्सरसाइज होता है, एंड्योरेंस, रेसिस्टेंस, बैलेंस वगैरह। जनरली कहते हैं कि एटलीस्ट दिन में और या हर हफ्ते 3 बार एटलीस्ट मॉडरेट इंटेंसिटी, एटलीस्ट 30 मिनट का एक्सरसाइज जनरली आप किसी फ्रेंड या पार्टनर के साथ करो। और आजकल तो स्मार्ट वॉचेस, डिवाइसेस आते हैं जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी को भी मेजर करते हैं, विच इज अ गुड थिंग फ्रॉम द कैंसर पर्सपेक्टिव। डाइट के बारे में मैंने भी काफी बात बोली है कि प्लांट बेस्ड डाइट आजकल इट्स अ फैड। तो वेजिटेरियन डाइट और खासकर वीगन डाइट एक खासकर हर वर्ल्ड में थोड़ा ही फेमस होते जा रहा है। इनफैक्ट आप जानते होंगे कि पहले विराट कोहली मीट बेस्ड
प्रोटीन्स लेते थे, और आजकल तो उनका मेन एम्फोसिस है वेजिटेरियन और वीगन बेस्ड डाइट, और आजकल तो वो अपने प्रोटीन्स को पनीर के साथ खास लेते हैं। तो स्टडीज कहता है कि वेजिटेरियन प्रोटीन से और वेजिटेरियन डाइट से कैंसर्स होने का चांसेस थोड़ा कम है। तो इसके कारण मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मीट टोटली अवॉइड करें, बट थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है। वो स्टडीज कहते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की पोर्शंस की मात्रा को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली प्रोटेक्शन होता है। और खासकर रेड मीट को, प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड कीजिएगा। बाकी सारे रेगुलर मीट और फिश, इनफैक्ट फिश ऑयल्स का लॉट ऑफ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फिश ऑयल में है। और सब लोग का मानना है कि जापानीज में जो लॉन्जिटिविटी होता है उनका ये फिश ऑयल की ज्यादा खाने के कारण होता है। तो दैट इज समथिंग। तो जनरल मीट के कारण नहीं है, बट प्रोसेस्ड और रेड मीट को खासकर अवॉइड करें। और वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए काफी सारे मेथड्स हैं, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी कहते हैं, आजकल तो बेरियाट्रिक सर्जरीज भी, स्पेशली बीएमआई अगर 40 से ज्यादा है तो रेकमेंड करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मैंने कहा था उतनी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, बट वर्ल्ड ओवर में स्पेशली जो देश इक्वेटर के पास होते हैं उनमें थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मेजर एडवाइस होगा कि 10 बजे से 4 बजे की सनलाइट को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज विच कॉजेस कैंसर की ज्यादा है। और अगर बाहर जाना है तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और विद अ सनस्क्रीन विद अ एसपीएफ फैक्टर ऑफ मोर देन 30 यूज करें। काफी सारे लोग विटामिन और मिनरल्स को प्रपोज करते, सब लोग कहते हैं कि आपने विटामिन खाया, मिनरल्स खाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि विटामिन और मिनरल्स के साथ कैंसर का रिलेशन काफी वीक है। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा कैल्शियम खाएंगे तो कोलन की कैंसर की मात्रा तो कम होगी, लेकिन प्रोस्टेट की कैंसर ज्यादा होगी। और कभी कभार फोलेट जो डाइट में लेते हैं उसके कारण भी थोड़ी कैंसर्स कम होती है। थोड़ी कैंसर्स में क्या होता है कि आयरन थोड़ी कैंसर्स को बढ़ाती है। तो ये नहीं है, कंसिस्टेंट एसोसिएशन नहीं है। तो हमारा मानना है कि हम लोग ने एक आरडीए दिया है, डेली डाइट रिक्वायरमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। उस मात्रा में आप खाएंगे तो आप सेफ रहोगे। हाइपर विटामिनोसिस और हाइपर मिनरलोसिस भी प्रॉब्लम है। तो हमारा एक एडवाइस होगा कि अगर जो भी विटामिन और मिनरल्स है उसको अपनी डाइट में आप इंक्लूड करेंगे तो बेहतर होगा, रादर देन सप्लीमेंटिंग इट विथ मिनरल्स। अगर आपको सप्लीमेंट करना ही होगा तो आपकी डेली आरडीए रिक्वायरमेंट्स में सप्लीमेंट करें और उसको ओवरडोज ना करें, बिकॉज इसमें प्रूवन बेनिफिट्स नहीं है और थोड़ी स्टडीज में हजार्डस भी माना जाता है। कैंसर स्क्रीनिंग, और स्वास्थ्य चरण सर ने बताया था कि ब्रेस्ट, सर्वाइकल और ओरल कैंसर्स में क्यों कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कैंसर्स, ये तीनों कैंसर्स मिला के प्रिवेंट करेंगे तो 1/3 ऑफ द कैंसर्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में कोलोरेक्टल और लंग कैंसर्स की स्ट्रेटेजीज ज्यादा है, लेकिन हमें फोकस करना है ब्रेस्ट, सर्वाइकल और ओरल कैंसर्स में। ब्रेस्ट कैंसर्स में खासकर क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन एक स्टडी है जिसका 20 साल का फॉलोअप है, जस्ट क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्रामिक एग्जामिनेशन नहीं, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के कारण 15% रिडक्शन है ऑल कॉज मोर्टेलिटी और 30% मोर्टेलिटी रिडक्शन जब वुमेन 50 साल के ऊपर थे। तो डेफिनेटली हमारे पास एविडेंस है कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बाय ट्रेन्ड एग्जामिनर, और आप सब लोग तो ट्रेंड ही है, तो उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर की आंकड़ा को हम कम कर सकते हैं। और हमने इसके बारे में भी काफी पब्लिश भी अर्लियर किया है। सर्वाइकल कैंसर तो एक प्रिवेंटेबल कैंसर जैसा बन रहा है। डब्ल्यूएचओ ने तो सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए बोला है, द सेंस लाइक उसका इंसिडेंस को 4 पर 100,000 से कम में लाने के लिए बोला है। एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बताया है जिसका फॉर्मूला है 90-70-90। 90% वैक्सीनेशन टारगेट, 70% स्क्रीनिंग और 90% इफेक्टिव ट्रीटमेंट। अगर ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन हो सकता है। लेकिन जो डब्ल्यूएचओ ने 2030 का टारगेट दिया है वो शायद थोड़ा एम्बिशियस टारगेट होगा, लेकिन ऐसे ही हम लोग प्रोग्रेस करते रहेंगे तो सर्वाइकल कैंसर विद इन दिस सेंचुरी इरेडिकेट होने का चांसेस काफी ज्यादा है। और आजकल तो इफेक्टिव वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजीज भी आए हैं, पहले भी थे लेकिन एक्सपेंसिव थे क्योंकि यूएस वगैरह से इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन अभी हमारे सीरम इंस्टीट्यूट के भी सर्वावैक वैक्सीन है जिसके जो काफी इफेक्टिव है, तो उसके कारण भी हम सर्वाइकल कैंसर और बाकी सारे कैंसर्स को भी हम इफेक्टिवली प्रिवेंट कर पाएंगे। और ये स्केड्यूल है
और ये तो काफी सारा टेक्निकल बात हो गई, और इसके बारे में हमने भी काफी पहले भी पब्लिश किया है। ओरल कैंसर्स तो ये तो ऑलमोस्ट एक इंडियन कैंसर है, साउथ ईस्ट एशियन में स्पेशली, खासकर इंडियन में तंबाकू के कारण ज्यादा होता है। अरीका नट बोलते हैं, उसके कारण भी सब म्यूकस फाइब्रोसिस होता है, जो चबाते रहते हैं उसमें क्या होता है कि मुंह खोल नहीं पाते हैं, उसका भी सब म्यूकस फाइब्रोसिस के बाद 5 से 8% पेशेंट्स को कैंसर की ज्यादा इंसिडेंस होती है। तो इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए हमको ऑफ कोर्स अवेयरनेस, ओरल हाइजीन, तो रेगुलर डेंटल एग्जामिनेशन, ओरल स्क्रीनिंग, और एक इंडियन स्टडी भी है जो शंकर नारायण सर जी जो आईआरक में थे और अभी शायद इंडिया में है, उन्होंने 2005 में 20 साल पहले ही पब्लिश किया था कि ओरल कैंसर जो विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, जो सिर्फ एक टॉर्च क्लाउड चाहिए और एक अच्छी सारी ट्रेन्ड माइंड चाहिए देखने के लिए, उसमें से अगर पिकअप होता है तो 12% मोर्टेलिटी इन ऑल इंडिविजुअल्स, और जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें मोर्टेलिटी रिडक्शन काफी ज्यादा होते हैं, अप टू 81%, जो 3 राउंड्स ऑफ स्क्रीनिंग को अडेयर करते हैं। तो डेफिनेटली ओरल कैंसर का विजुअल एग्जामिनेशन इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड। आजकल तो काफी सारे एडजंक्ट्स आ गए हैं, लेकिन एडजंक्ट्स पॉपुलर है, लेकिन उसमें स्टडीज अभी और बाकी है। तो फ्यूचर प्रिवेंशन के लिए कहेंगे तो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा आता होगा। इनफैक्ट मैंने क्या कह रहा था, आपका स्मार्ट वॉच ही, आपका स्मार्टफोन ही आपका हेल्थ मॉनिटर जैसे हो रहा है आजकल। इनफैक्ट काफी सारे देशों में क्या होता है कि पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में आते हैं उनकी कंप्लेंट देखते हैं, उसमें बोलते हैं कि आईफोन डिटेक्टेड अबनॉर्मेलिटी इन द हार्ट के कारण पेशेंट ने प्रेजेंट किया था इमरजेंसी रूम में। तो मेरे ख्याल से कैंसर्स में भी ये शायद स्मार्ट वॉच और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी आती रहेगी फ्यूचर में शायद। ये हम फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, ये नहीं कि ये रियल वर्ल्ड में हम यूज नहीं करते हैं। आई ब्रश होगा शायद ओरल कैंसर्स के लिए, या अब आप ब्रश यूज करेंगे तो उसमें भी शायद इंटेलिजेंट ब्रश के कारण भी कभी कभार पता चलता होगा। आई टॉयलेट कहते हैं, कोलोरेक्टल प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स और स्क्रीनिंग वगैरह हो सकता है। तो ये सब आजकल तो वो काफी सारा रिसर्च चल रहा है इसमें, और सेल्फ टेस्टिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर्स भी कह रहे हैं। अभी क्या होता है कि हर लोग अपने जीनोम जानने की कोशिश करें, तो अभी सब लोग तो अपनी ऑरोस्कोप पढ़ के रखते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक एक ट्रेंड्स आ रहा है कि आपका जेनेटिक मेकअप के बारे में, जेनेटिक ऑरोस्कोप भी मेरे ख्याल से मेरे फ्यूचर में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि शायद अभी नहीं कि 5-10 साल में होगा कि आपका जेनेटिक ऑरोस्कोप भी शायद मिलेगा, जो जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका रिस्क और परसेप्शन कितना है, ड्रिवन बाय 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 सर्टेन हाई रिस्क फैक्टर्स। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि वो जो इंफॉर्मेशन है उसको हमको तो बहुत केयरफुल से उसको असिमुलेट करना है, उसको एस्टिमेट करना है रिस्क को, उसको बताना है और कम्युनिकेट, बिकॉज सबको ये इंफॉर्मेशन शायद ओवर इंफॉर्मेशन होगा जिसका अनसर्टेनिटी है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन और जेनेटिक हॉरोस्कोप तो शायद फ्यूचर में होगा, लेकिन काफी सारे चैलेंजेस होंगे इसको इंप्लीमेंट करने में, इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेटिंग, कंटेक्चुअलाइजिंग और कम्युनिकेटिंग विद पेशेंट्स, क्योंकि काफी सारा अनटुवर्ड इश्यूज भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से फ्यूचर ऑफ ऑन्कोलॉजी आप सबके हाथ में है, आपको क्रिएट करना है, आपको प्रिवेंट करना है। हमारा तो ऑन्कोलॉजी की मतलब से क्या हो रहा है कि पेशेंट्स को हम क्योर करना चाहते हैं, और जिनको हम क्योर नहीं करते हैं उनको कैंसर कंट्रोल करना है लॉन्ग टर्म में। अभी भी जब मैं ट्रेन कर रहा था, अभी हाल ही में किसी रेडियो एफएम के में कह रहा था कि पहले जब मैं ट्रेन कर रहा था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, चौथी स्टेज के लंग कैंसर में कोई ट्रीटमेंट नहीं थी ज्यादा, एक कभी कभार कीमोथेरेपी दे देते और कहते थे कि आप लेना है तो ले लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना। लेकिन अभी का सीन है, ये अभी नहीं काफी सालों से आ रहा है कि इवन चौथे स्टेज के कैंसर्स में थोड़े पेशेंट्स में जिनका एक फेवरेबल म्यूटेशन आता है, उसमें काफी सारे टारगेटेड ड्रग्स आते हैं। उस ड्रग्स के देने से उन पेशेंट्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स होते हैं। तो जो 15 या 20 साल पहले जिसको हम कोई ट्रीटमेंट नहीं है बोलते थे, अभी प्रिसिशन मेडिसिन के कारण उनको भी हम क्योर कैरल में आते हैं, को ला पा रहे हैं। तो इफेक्टिव मैसेज है कि कैंसर्स को हम डेफिनेटली क्योर पर कर पाएंगे, अर्ली कैंसर्स को डेफिनेटली क्योर रेट्स की मात्रा काफी ज्यादा है। एडवांस कैंसर्स के कारण, एडवांस कैंसर्स में भी इफेक्टिव पर्सनलाइज थेरेपी के कारण हम क्योर कर पाएंगे। काफी सारे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस आए हैं, एडवांसेस आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा आप सब में है वो है क्लिनिकल रिलेशनशिप विद पेशेंट्स। उसको आप ट्रस्ट को बनाए रखे, कम्युनिकेशंस को एकदम स्ट्रांग रखे,
एक कंपैशनेट और एम्पैथेटिक और ह्यूमन टच है जो मेरे हिसाब से कोई कंप्यूटर वगैरह रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी, एटलीस्ट गिवन दिस टाइम। मे बी शायद कर पाएगी इन द फ्यूचर, बट फॉर नाउ आपको जानना है, ये इंफॉर्मेशन आपको जस्ट अवेयरनेस के लिए दिया है। बट आप जब पेशेंट्स के साथ डील करते हो तो कंपैशनेट और एम्पैथेटिक और ह्यूमन टच के साथ डील करें। तो विद दैट आई विल स्टॉप, एंड अगर कोई क्वेश्चंस है तो मैं आई विल बी हैप्पी टू टेक इट। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। I'll be happy to take any questions अगर आपके साइड में या आपके सेंट्रल के साइड में कोई है तो। Dr. Avinash, sir. Sir, I think there are no questions among the audience. अवधेश जी, क्या इसमें हमें लगता है? जी सर। सर क्वेश्चंस तो हमारे पास है नहीं, तो आई थिंक हाँ। So, sir, we are thankful for your presentation and covering all the minute details on the subject. And of course, your insights and expertise definitely would have made a impact and in a way given some multi-dimensional perspectives to understanding of cancer to our CHOs, medical officers in the district hospital, CHC and PHC. And there are some questions in the chat box if you before can take it. Otherwise, if sign you off, are overshooting time, then we can. I think, sir, in the chat box, the Q&A, I think there are some question answers. So if you want, we can take it. But if you are short on time, cancer has been चैट बॉक्स में तो अवधेश जी, कैन वी फाइंड द क्वेश्चंस Q&A में है ना, पास में है, तो देयर आर सम क्वेश्चंस वी कैन, सर, इन द Q&A box. I think they are patient specific questions. जैसे sir, one patient undergone laryngectomy, can we rehabilitate with artificial voice box? तो ये तो individual. What cancer has been associated with HPV? So ऐसा कुछ individual questions हैं sir. ठीक है ठीक है, नहीं I'll go by whatever you all say, like now. हाँ. So before we sign off, we would like to acknowledge the contribution of Eco India to support this webinar, and Avdesh ji is there from Eco, who is always there for the back end support. So thank you, Avdesh ji, for all the support. I think is it okay that we can sign off? Avdesh ji, क्या करें? हो गया अपना? Yes, we can sir. Sign off. We can sign off. Thank you, sir. Sir, okay. Once again, thank you, Dr. Arvind Krishnamurthy, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Arvind.